सद्गुरु देव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। रामदेव पीर की जय। सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। हर हर महादेव हर। બધા દેવી દેવતાઓની જય બોલાવવામાં આવે અને ભારત માતાની જય બોલાવવામાં ના આવે તો આગળની જે જય બોલી છે એનું ફળ આપણને ના મળે। ભારત માતા કી સારા હજુ વધારે તાકાત ભારત માતાને જય બોલવી પડે। ભારત માતા કી ભારત માતા કી गणपति बापा मोरया। आधा लड्डू चोरिया। જેવી રીતે ભારત માતાની જય બોલાવવામાં આવે છે એ જ પદ્ધતિથી હર હર મહાદેવની પણ એ જયકારાનો નારો થવો જોઈએ। હર હર મહાદેવ શાંતિનો પણ નારો છે અને હર હર મહાદેવ યુદ્ધનો પણ નારો છે। શાંતિના સમયમાં હર હર મહાદેવમાં જાપ કરીને એના મંત્રોચ્ચાર કરીને સંત મહાત્માઓ સિદ્ધ બનતા હોય છે। એ જ હર હર મહાદેવનો નારો જ્યારે યુદ્ધમાં બોલાય છે એ વખતે યોદ્ધાઓ એ જ નારાનો સહારો લઈને વીર ગતિને પ્રાપ્ત થતા હોય છે। હર હર મહાદેવનો નારો આપણને વિજય અપાવે છે। વિજય અથવા તો વીર ગતિ આ બે જ રસ્તા છે, બે જ વસ્તુઓ છે, ત્રીજો કોઈ માર્ગ છે નહીં। વિજય અથવા તો વીર ગતિ। યુદ્ધના મેદાનમાં ભારતના યોદ્ધાઓ જ્યારે પ્રવેશ કરતા હતા અને આજે પણ જ્યારે એ પ્રવેશ કરે છે તો કે તો એ વિજય શ્રીને વરે છે, વિજયને પ્રાપ્ત થાય છે અને કે પછી વીર ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે। હાર હાર એ ભારતના યોદ્ધાઓની ડિક્શનરીમાં નથી। પીછે હટ એ ડિક્શનરીમાં શબ્દ નથી। પીછે હટ ક્યારે થાય નહીં। પીછે હટ કરે એ યોદ્ધો નહીં। યુદ્ધના મેદાનમાં વિજયને પ્રાપ્ત થાય અથવા તો વીર ગતિને પ્રાપ્ત થાય। ભગવાન કૃષ્ણે યુદ્ધના મેદાનમાં કહ્યું છે હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગમ હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગમ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃતનિશ્ચયઃ। હે અર્જુન આ ધર્મ યુદ્ધ છે। આ ધર્મ યુદ્ધની અંદર જો તું હણાયો
तो तू स्वर्ग ने प्राप्त थईश। हणायो જીતવાવા મોક્ષ છે મહી, જો જીતીશ તો આ ધરતી ઉપરનું રાજ તારું છે, અને જો તું વીર ગતિને પ્રાપ્ત થઈશ, હણાઈશ, તો આ સ્વર્ગ જે છે એ તારા નામે લખેલું છે। માટે હે અર્જુન, પીછે હટ નહીં। આ યુદ્ધનું મેદાન હોય, આ રાજ સત્તાનું મેદાન હોય કે ધર્મ સત્તાનું મેદાન હોય, ત્યાં પીછે હટને કોઈ સ્થાન નથી। ગુજરાતમાં કવિ નર્મદે ગાયું છે, ગુજરાતીઓનો જુસ્સો કવિ નર્મદે બતાવ્યો છે કે પગલું ભરવું તો ના હટવું, ના હટવું, અને વેણ કાઢ્યું તો ના લટવું, ના લટવું। સમજીને તો પગલું ભરવું અને પગલા ભર્યા પછી ના હટવું। આ સ્પિરિટ છે ગુજરાતનો, આ ગુજરાતની ધરતીનો સ્પિરિટ છે કે એક વખતે કદમ માંડ્યું, એક વખતે પગલું આગળ આવી ગયું, એક વખતે પ્રસ્થાન ચાલુ કરી દીધું, તો પછી એમાં આગળ જ વધવાનું છે, પીછે હટ કરવાની નથી। આ નર્મદનું સૂત્ર છે એ આપણે યાદ રાખવાનું છે। કવિ નર્મદ અંગ્રેજોના શાસનની અંદર જે સ્પિરિટ બતાવ્યો, એ સ્પિરિટ ગુજરાતીઓની નસ નસમાં આજે પણ ફરે છે। આપણે 5મી ઓગસ્ટ છે, आज स्थान पर गुरु वंदना मंचनी स्थापना करी। गुरु वंदना मंचनी स्थापनाનો ઉદ્દેશ કે ગુજરાત રાજ્યમાં અને આપણા દેશમાં જેટલા પણ સનાતન ધર્મના સંપ્રદાયો છે, એ સંપ્રદાયોના સાધુ સંતો એક મંચ ઉપર આવે, તો આપ સાધુ સંતો 5 ઓગસ્ટે એક મંચ ઉપર આવી ગયા, અને એક મંચ ઉપર આવ્યા પછી દ્રઢ નિર્ધાર કર્યો કે હવે આ ગુજરાત રાજ્યમાં અને આ દેશમાં 1 અબજ હિન્દુઓની ધર્મ સત્તાની સ્થાપના થવી જોઈએ। અને એ ધર્મ સત્તાની સ્થાપના માટે 11 સપ્ટેમ્બર આજનો દિવસ પસંદ કરવામાં આવ્યો। આજનો દિવસ પસંદ કરવામાં આવ્યો મુખ્ય કારણ તો આજે ઋષિ પંચમી છે। ઋષિ પંચમીના દિવસે આ સનાતન ધર્મના અને આ ભારત માતાના અનાદિ અને અનંતકાળથી ચાલી આવતી જે ઋષિ પરંપરા છે, એ ઋષિ પરંપરાના ઋષિ મુનિઓને યાદ કરી, આજે એમનું સ્મરણ કરી, અને જે ઋષિ મુનિઓએ ધર્મ સત્તાની સ્થાપના કરી, અને ધર્મ સત્તાની સ્થાપનામાંથી ઋષિ મુનિઓએ જે રાજ સત્તાની સ્થાપના કરી, આજે રાજ સત્તા છે પરંતુ ધર્મ સત્તા નથી। એટલે ધર્મ સત્તાને પુનઃ પ્રસ્થાપિત જો કરવી હોય, અને આજે ધર્મ સત્તાને આપણે પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરી છે। શ્રી ગણેશ ધર્મ સત્તાના ગુજરાતમાં આજના દિવસે થઈ રહ્યા છે। આજે મંગલાચરણ છે, ધર્મ સત્તાનું મંગલાચરણ છે। આજે ધર્મ સત્તાનું બીજ વવાઈ ગયું છે। આ ધર્મ સત્તા વટવૃક્ષ થશે, આજે નહીં તો કાલે, ફક્ત ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની અંદર આ ધર્મ સત્તા વ્યાપ્ત થશે। તો આજે 11મી સપ્ટેમ્બરે આપણા મહાન ઋષિઓને, આપણા મહાન બ્રહ્મર્ષિઓને, આપણા મહાન રાજર્ષિઓને આજે આપણે યાદ કર્યા છે। આજે આપણે એમને નતમસ્તક છીએ। આપણે સૌ આપણા જે મહાન ઋષિઓ છે, એ મહાન ઋષિઓને આજે કોટી કોટી વંદન કરી, અને આજે આ ધર્મ સત્તાની જાહેરાત
આજે કરવામાં આવી છે. તો આજે ઋષિ પંચમી છે અને ઋષિ પંચમીનો દિવસ ધર્મ સત્તા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. એ ધર્મ સત્તા માટે પસંદ કરેલો દિવસ યોગ્ય છે, પરંતુ એના સિવાય પણ બીજી 4 મહત્વની ઘટનાઓ આ દિવસ સાથે જોડાઈ છે. પરમ પૂજનીય કનૈયારામ બાપુ ફક્ત ઋષિ પંચમી આજે નથી, ઋષિ પંચમી છે એના કારણે તો આજે ધર્મ સત્તાની સ્થાપના માટે મહત્વનો દિવસ છે. आज ऋषि पंचमी का दिवस है. ऋषि पंचमी ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को उनका स्मरण करके, उनकी पूजा करके, उनका चिंतन करके, उनका मनन करके गुजरात में धर्म सत्ता की स्थापना हुई है. इस ऋषि पंचमी के दिन के साथ और 4 महत्व की घटनाएं घटी हुई है. ये घटनाएं मुझे आज आपको बतानी पड़ेगी. ये धर्म सत्ता के साथ ये बाकी की 4 घटनाओं का बहुत महत्व जुड़ा हुआ है. पहली घटना है आज के दिन 1893 1893 के दिन. आज 11 सितंबर है, जिसको अंग्रेजी में 9/11 कहते हैं. ये जो 11 सितंबर का दिन है, ये 11 सितंबर का वो दिन है 1893 का 1893. भारत में से 30 साल के युवा सन्यासी विवेकानंद शिकागो में गए, अमेरिका में गए, और अमेरिका के कोलंबस हॉल में जो प्रसिद्ध स्पीच दी थी वो दिन आज है. स्वामी विवेकानंद ने आज के दिन हिंदू धर्म का झंडा विश्व में फहराया था. एक 30 साल के सन्यासी ने अमेरिका में शिकागो में विश्व धर्म परिषद में सिद्ध कर दिया. उस जमाने में जो ईसाइयों का शासन पूरी दुनिया में चलता था, वो ईसाइयों ने ऐसा कपट किया था. वो धर्म संसद रचने का उनका ऐसा आशय था कि दुनिया भर के जितने भी धर्मावलंबी है, जितने भी धर्म के लोग हैं, इनको यहाँ इकट्ठा करें और इकट्ठा करके हम साबित कर दे कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है तो वो क्रिश्चियनिटी है. ऐसा साबित करने के लिए धर्म संसद का आयोजन हुआ था शिकागो में, लेकिन उल्टा हुआ. स्वामी विवेकानंद वहां पहुंच गए. स्वामी विवेकानंद ने ऐसी स्पीच दी वहां. उन्होंने सनातन धर्म के वो सत्य बताए. उन्होंने हमारी जो प्रस्थान त्रयी है, हमारे जो वेद है, हमारे जो वेदांत है, हमारे जो उपनिषद है, हमारे जो ब्रह्म सूत्र है, हमारी जो गीता है, उसमें से ऐसी ऐसी बातें उन्होंने धर्म संसद में बताई कि उस जमाने के जो ईसाईयत पूरी दुनिया के ऊपर राज करती थी, उन लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि हिंदुइज्म जो है सनातन धर्म है, इस दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है. ये बात विवेकानंद जी ने आज के दिन सिद्ध की. वो जो दिन है, उस दिन को हम कह सकते हैं कि वो हिंदू दिग्विजय का दिवस था. आज का दिवस है वो हिंदू दिग्विजय का दिवस है. एक सन्यासी ने जो काम करके दिखाया, उस काम को हम आज भी याद करते हैं. क्यों याद करते हैं? इन्होंने जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात की, उस सनातन धर्म के बात के आधार पर ही हम लोग गुजरात में धर्म सत्ता की स्थापना करने को जा रहे हैं. धर्म सत्ता की स्थापना हमने जो की है, हमारा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमने लिए है स्वामी विवेकानंद जी के पास से. दूसरी महत्व की घटना आज के साथ जुड़ी हुई है. सिर्फ ऋषि पंचमी है वो तो है, हमारा महान दिन है,
इसलिए धर्म सत्ता हिंदू ऋषि पंचमी के दिन प्रस्थापित कर रहे हैं। एक दूसरी घटना जो है वो घटना पुण्य श्लोक महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ी हुई है। 1906 की साल 1906 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे, M.K. गांधी के नाम से वकीलात वहां करते थे और उन्होंने हिंदुस्तानी जो वहां रहते थे, भारतीय वो रहते थे, तो उनके अधिकारों के लिए वो लड़ाई वहां कर रहे थे। वो लड़ाई करने के लिए उन्होंने जो सत्याग्रह का जो शब्द प्रयोग किया, इस धरती ऊपर सत्याग्रह का जो शब्द प्रयोग है वो 1906 की साल में जोहानिसबर्ग में स्टेट एम्पायर बिल्डिंग में महात्मा गांधी ने आज के दिन ही सत्याग्रह की घोषणा की थी। विवेकानंद जी का नाम इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी का नाम इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है। आज के दिन दो मतलब धर्म का विजय हुआ। महात्मा गांधी ने जो भी उन्होंने जो कामकाज किया, आजकल फैशन चलती है महात्मा गांधी की टीका करने की, महात्मा गांधी को हल्का दिखाने की फैशन इस देश में शक्ति है, एक कम सी घटना है। महात्मा गांधी जैसा आदमी कभी हजारों साल के बाद भारत में जन्म लेता है। ऐसा जो महात्मा गांधी है, ऐसे महात्मा गांधी इसी धरती की पैदाइश थी, सौराष्ट्र की, गुजरात की। ये जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी एक ऐसा नेता थे आजादी के पहले, वो कहते थे मुझे हिंदू होने का गौरव है। उस जमाने के कांग्रेस का कोई नेता ये बात नहीं करता था, वो कहते थे कि मुझे हिंदू होने का गौरव है। महात्मा गांधी ने आजादी का आंदोलन इस देश में चलाया। वो नाम का ही राष्ट्रीय आंदोलन था, सचमुच में तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन महात्मा गांधी ने आजादी के पहले चलाया था। ये महात्मा गांधी की बातें भुला दी गई है। महात्मा गांधी ने ऐसा बहुत कुछ किया है इस देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो महात्मा गांधी का जो नाम है ये भी इस तारीख के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दो पॉजिटिव बातें आज के दिन हुई, दो नेगेटिव बातें भी आज के दिन हुई, वो भी मैं आपको बता दूं। दो नेगेटिव बातें 2001 की साल, 2001 की साल आज के ही दिन अफगानिस्तान में से, पाकिस्तान में से आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क का जो ट्विन टावर है, न्यूयॉर्क का ट्विन टावर है, ये दो टावरों के ऊपर उन्होंने प्लेन लेके हमला किया और न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को तोड़ दिया। ये तीसरी घटना है। अभी चौथी घटना मैं आपको बताऊं, 2001 के पहले की ये चौथी घटना मैं आपको बताऊं। तीसरी घटना है, चौथी ये है 1948 जिस आदमी ने मोहम्मद अली जिन्ना, जिस आदमी ने इस देश का बंटवारा किया, हिंदू 90 साल तक लड़ाई लड़ी देश की आजादी के लिए। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक 90 वर्ष સુધી હિન્દુઓ યુદ્ધ કર્યું, સંઘર્ષ કર્યો આ દેશને આઝાદ કરવા માટે। આ દેશ આઝાદ તો થયો, પરંતુ આઝાદી આપણને અડધી મળી, પૂરી આઝાદી મળી નહીં। આઝાદી આપતા આપતા એક મોહમ્મદ અલી જીણા નામનો એક ટીવી પેશન્ટ, મોહમ્મદ અલી જીણા નામનો ફોટો જુઓ તો બી તમને લાગે કે ટીવી પેશન્ટ છે, અને ખરેખર એને ટીવી થયો તો એ વખતે, અને ટીવી એ વખતે સાથે રોગ હતો। આ મોહમ્મદ અલી જીણા નામનો ટીવી પેશન્ટ જે છે, એ ટીવી પેશન્ટે એવી પરિસ્થિતિ આ દેશની અંદર ઊભી કરી કે 90 વર્ષથી હિન્દુઓ
દેશની આઝાદી માટે, અખંડ ભારતની આઝાદી માટે હિન્દુઓએ સંઘર્ષ કર્યો, એ 90 વર્ષની જે તપચર્યા જે છે એ તપચર્યા ઉપર આ ટીવી પેશન્ટે 1947 આવતા પાણી ફેરવી દીધું. શું પાણી ફેરવી દીધું? દેશનું વિભાજન થયું. અને દેશનું વિભાજન થયું કેટલી મોટી દુર્ઘટના હતી એની આપણે કલ્પના કરી શકીએ એમ નથી. આપણે હિન્દુઓ આપણી સ્મૃતિ જરા નબળી હોય છે, આપણે જલ્દી ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. 10 લાખ શીખ અને હિન્દુઓની કતલ થઈ. આઝાદી આવી વખતે 10 લાખ શીખ અને હિન્દુઓની કતલ થઈ. 3 કરોડ હિન્દુઓએ એમના ઘરબાર છોડ્યા પાકિસ્તાનમાંથી અને ભારતની અંદર આવ્યા. બેન બેટીઓની ઇજ્જત લૂંટવામાં આવી અને જબરન ધર્મ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું. 1947 માં 15મી ઓગસ્ટ આવે એના પહેલા આ બધું જે નરા ધર્મ જે મોહમ્મદ અલી જીના હતો એના કારણે થયું હતું. અને 1948 માં આજની તારીખે 11મી સપ્ટેમ્બરે આ મોહમ્મદ અલી જીનાનું કરાચીની અંદર મૃત્યુ થયું. તો બે ઘટનાઓ, સ્વામી વિવેકાનંદની એક ઘટના, મહાત્મા ગાંધીની એક ઘટના, આ બે ઘટનાઓ તો ધર્મનો વિજય કરવા માટે હતી, અધર્મનો નાશ કરવા માટે હતી. વિવેકાનંદ અને મહાત્મા ગાંધીનો ઉદ્દેશ એક જ હતો. એ બંનેના મૂળિયા જે છે એ સનાતન ધર્મની અંદર હતા. તો એ તો બંને ધર્મ ઉપર ચાલતા હતા. પરંતુ આજે 9/11 જે છે જે અમેરિકામાં થયું અને 9/11 ના દિવસે આજની તારીખે મોહમ્મદ અલી જીના મરાનો, તો આ બે ઘટના જે છે એ બે ઘટના અધર્મની ઘટના છે. આગળની ઘટના ધર્મની ઘટના છે. ધર્મ ઉપર અધર્મનો વિજય એ આજના દિવસનો મહિમા છે. અધર્મ ઉપર ધર્મનો વિજય, અસત્ય ઉપર સત્યનો વિજય, અનીતિ ઉપર નીતિનો વિજય, એ આજનો દિવસ છે. અને આજની તારીખે આજના દિવસે આજે આપણે ધર્મ સત્તાની સ્થાપના કરી છે. તો આ દિવસ ઋષિ પંચમીના કારણે તો મહત્વનો છે, પરંતુ આ બાકીની જે 4 ઘટનાઓ છે એના માટે પણ મહત્વનો છે. અને હવે ધર્મ સત્તાની સ્થાપના જે છે આ પણ આ 9/11 ના દિવસે 11 સપ્ટેમ્બરના દિવસે થઈ છે. તો આ 4 મહત્વની ઘટનામાં હવે 5મી મહત્વની ઘટના હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે મૂળ વાત ઉપર આવી જઈએ. મૂળ વાત એ છે કે 5મી ઓગસ્ટે જ્યારે આપણે ગુરુ વંદનાની રચના અહીંયા કરી, તો એ વખતે એક જૂઠાણાનો મેં પર્દાફાશ કર્યો હતો. શું પર્દાફાશ કર્યો હતો? કે સંપ્રદાય નિરપેક્ષ તો આપણે છીએ. हिंदुस्तान संप्रदाय निरपेक्ष आज भी है, पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा. अपने देश की जो व्यवस्था है वो हमेशा संप्रदाय निरपेक्ष रही है, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था धर्म निरपेक्ष कभी नहीं रही है. 1947 के पहले हमारे देश में धर्म सत्ता, राज सत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता भी चलती थी. तो 1947 के बाद इस संविधान के नाम पर गलत प्रचार करके कि भाई हमारा संविधान है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा गलत प्रचार करके इस देश में हिंदुओं की कोई शक्ति को बढ़ने दिया नहीं, हिंदुओं की धर्म सत्ता को पैदा होने दिया नहीं. क्या बात बता के कि हम धर्मनिरपेक्ष है. तो हमारे गुजरात के संतों ने परामर्श किया, इसके ऊपर चिंतन किया, इसके ऊपर मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद शास्त्रों का आधार लेके, संविधान का आधार लेके, कानून का आधार लेके
हमारे संत महापुरुषों ने ये तय किया कि हम संप्रदाय निरपेक्ष तो है। संप्रदाय निरपेक्ष मतलब सेक्युलर हम इसलिए नहीं है कि हमको किसी ने सेक्युलर बनाया है। इस धरती ऊपर इस्लाम जब पैदा नहीं हुआ था तब भी हम सेक्युलर थे। इस धरती पर क्रिश्चियनिटी जब पैदा नहीं हुई थी तब भी हम सेक्युलर थे, मतलब संप्रदाय निरपेक्ष थे। और इस धरती ऊपर जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं रहेगी तब भी हम संप्रदाय निरपेक्ष रहेंगे। संप्रदाय निरपेक्ष ये कोई बाहर से दिया गया थोपा हुआ ये कोई कंसेप्ट हमारे ऊपर नहीं है। ये संप्रदाय निरपेक्षता जो है, सर्व संप्रदाय मतलब मत निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, मजहब निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष, ये तो हमारा स्वभाव है। हम पहले भी थे, आज भी है और बाद में रहेंगे। संप्रदाय निरपेक्ष रहना हमारी मजबूरी नहीं है। सुरेश चौहान जी, संप्रदाय निरपेक्ष रहना वो हमारी मजबूरी नहीं है। संप्रदाय निरपेक्ष हमारे डीएनए में है, लेकिन धर्म निरपेक्ष हम कभी नहीं थे। धर्म निरपेक्ष हम रहना नहीं चाहते। आज में हमने धर्म सत्ता की स्थापना कर दी है और धर्म सत्ता की स्थापना करके हमने तय कर दिया है, गुजरात की धरती ने बता दिया है कि धर्म सत्ता की स्थापना हो गई है। धर्म सत्ता की स्थापना हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान के खिलाफ चले गए। हम संविधान के खिलाफ नहीं जाते हैं, हम राज सत्ता के खिलाफ भी नहीं जाते हैं, हम कानून के खिलाफ भी नहीं जाते हैं। हम संविधान को भी मानते हैं, हम कानून को भी मानते हैं, हम राज सत्ता को भी मानते हैं। हम सबको साथ लेके धर्म सत्ता को आगे बढ़ाना चाहता है। आज धर्म सत्ता की स्थापना हो गई है और हमें आगे बढ़ने का है। तो ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये बहुत बड़ा झूठ हम लोगों को बताया गया था। एक दूसरी भ्रमणा भी इस देश में चलाई जा रही है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इस भ्रमणा को हमें तोड़ना है। हमें जो धर्म सत्ता को आगे बढ़ानी है तो भ्रमणाओं को तोड़ना पड़ेगा। भ्रमणा नहीं टूटेगी। एक भ्रमणा को तोड़ा तो धर्म सत्ता पैदा हो गई। दूसरी भ्रमणा को हम तोड़ेंगे तो ये धर्म सत्ता आगे बढ़ेगी। आगे ही नहीं बढ़ेगी, ये धर्म सत्ता दौड़ने लगेगी, ये धर्म सत्ता उड़ने लगेगी। और 1200 साल से इस देश में जो नहीं हुआ है वो अब इस धर्म सत्ता के नेता के नीचे हिंदुस्तान में होने को जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमें दूसरी भ्रमणा तोड़नी पड़ेगी। सुरेश जी हमारे बीच में उपस्थित है। सुरेश जी चौहान जी हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है, हमारे साथी है। हम तालियों के गड़गड़ाहट से उनकी उपस्थिति को बधाई दें। और ये जो कार्यक्रम आपका जो चल रहा है वो सुदर्शन चैनल पर लाइव है। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि गुजरात में क्या हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान को पता चल रहा है, ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। ये हमारे दोस्त है, हमारे साथी है। और उनकी जो सुदर्शन चैनल है, सुदर्शन चैनल का नाम ही वो है। हम जानते हैं संत महापुरुषों की सभा है, सुदर्शन क्या है हम जानते हैं। ये सुदर्शन चैनल है, ये धर्म स्थापना के लिए ही सुदर्शन चैनल है। यहाँ उपस्थित है हमारे मित्र, यहाँ उपस्थित है वो खाली साथी और मित्र ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस धर्म सत्ता की स्थापना की तैयारियां हम 1 साल से की और इस धर्म सत्ता की स्थापना हो गई है, इस विषय को बहुत पहले से ये लेके चल रहे हैं। इनको तालियों के गड़गड़ाहट से हमें फिर से बधाई देनी चाहिए। तो सूर्य जी यहाँ उपस्थित है, ये बड़े प्रबुद्ध हिंदू बुद्धिजीवी है, प्रबुद्ध हिंदू है। हिंदू होने का उनको गौरव है और हिंदू की सिर्फ बात नहीं करते हैं,
ऐसा कुछ करके दिखाया है और ऐसा कुछ करके दिखाने की उनकी भावना है कि फिर से सनातन धर्म की ध्वजा जो है सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर फड़कनी चाहिए, वो उद्देश्य लेके वो चले हुए उनकी उपस्थिति है। और मैं दूसरी भ्रमणा तोड़ना चाहता हूं, ये बुद्धिजीवी है, जैसे आप संत महापुरुष शास्त्रज्ञ है, और अभी तो संत महापुरुष संविधान को भी जानते हैं, संत महापुरुष कानून को भी जानते हैं। आप सबको मैं एक दूसरी भ्रमणा की बात करता हूं। वो भ्रमणा ऐसी है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का है। ये सुनने की बात है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी, ऐसी बातें किताबों में नहीं मिलेगी, ऐसी बातों की कोई चर्चा नहीं करता है। बात ऐसी है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ऐसी बात चलती है, बराबर चलती है कि नहीं चलती है? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। हरिहरानंद बापू, कनीराम बापू आ વાત આપણા દેશમાં ચાલે છે, ઘણા સમયથી ચાલે છે કે આ દેશને હિન્દુ રાષ્ટ્ર ઘોષિત કરવાનો છે। હવે હું આપને એમ કહું કે આ પણ એક ભ્રમણા ફેલાવવામાં આવી રહી છે। આપને થોડું દુઃખ લાગશે, आपको थोड़ी पीड़ा होगी कि हिंदुत्व का झंडाधारी डीजी बंजारा क्या बोल रहा है। आपको पीड़ा होगी, आपको पीड़ा होगी। असली सत्य क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बात सिर्फ धर्म सत्ता को बताया जाता है। और धर्म सत्ता बन गई है तो धर्म सत्ता के बाद हमारा एजेंडा होगा। उस एजेंडे का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये होगा, एक भ्रमणा तोड़ी तो धर्म सत्ता खड़ी हुई, अभी 10 दूसरी भ्रमणा तोड़ेंगे तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात जो है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, तो ये भारत जो उद्देश्य है उस उद्देश्य तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या गड़बड़ी क्या है इसमें? इसमें जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी वो है, गड़बड़ी ऐसी है कि हिंदू राष्ट्र हमारे पास से कभी गया नहीं। सुन लो, आज पूरा देश सुन रहा है। सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं एक सत्य बताना चाहता हूं पूरे देश को, ये जल्दी ये पूरे देश में ये बात फैलेगी तो जल्दी शुभ परिणाम इस देश के लिए आएंगे। इस देश में से हिंदू राष्ट्र कभी गया ही नहीं। सुन लो, इस देश में से हिंदू राष्ट्र कभी गया ही नहीं, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र आज भी है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, यदि कोई बोले कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें परिभाषा में सुधार करना पड़ेगा। आज की तारीख, इस दिन, इस मौके से मैं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं याद करना चाहता हूं, उनको मैं याद करना चाहता हूं। क्यों याद करना चाहता हूं वो भी मैं आपको बता दूं। यूपी में जब सरकार आई योगी जी को, और उन्होंने जो भी कुछ काम करने का शुरू किया, आप जानते हो क्या काम कर रहे। आज हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट ज्यादा एफिशिएंट और परिणाम लक्षी कोई भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो यूपी का है, और उसका वजह है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, योगी आदित्यनाथ जी को टेढ़े टेढ़े प्रश्न
वो पूछ रहे थे पत्रकार लोग, वो पूछ रहे थे कि भाई आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सवाल कहाँ पैदा होता है? हम हिंदू राष्ट्र थे, आज भी हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में हिंदू राष्ट्र रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र तो हम थे, है और रहेंगे। हमने राष्ट्र खोया नहीं, हमने क्या खोया? बात ये है कि हमने राष्ट्र कभी नहीं खोया। हमने क्या खोया? सुन लो, राष्ट्र हमने कभी नहीं। 1200 साल विदेशियों का शासन हुआ। इस शासन के दरमियान हम हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र कभी खोया नहीं। हम हिंदुओं ने खोया हिंदू राज्य खोया। हमारा राज्य गया हमारे हाथ में से, राष्ट्र नहीं गया हमारे हाथ में से। वी लॉस्ट स्टेट। सुरेश जी, वी हिंदूज लॉस्ट स्टेट एंड नॉट नेशन। राष्ट्र हमने कभी खोया नहीं, हमने राज्य खोया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। 1205 में सुल्तानों का शासन दिल्ली में आया। उसके पहले पृथ्वीराज के पास हमारा राज्य था। किसका? हिंदुओं का राज्य किसके पास था? हिंदुओं का राज्य पृथ्वीराज चौहान के पास था। 1205 में सुल्तानों का शासन दिल्ली में आया। तो हिंदुओं का जो राज्य था वो तुर्कों के पास चला गया। क्या हुआ? सुल्तानों के पास वो राज्य चला गया। अभी जब दिल्ली में तुर्कों का शासन शुरू हुआ तो उस वक्त ये विदेशी तुर्क जो है, सुल्तान जो है, उसकी संख्या कुछ हजार लोगों से ज्यादा नहीं थी। थोड़ा 1000, 50,000, 50, 60, 70 हजार हटा लोगों 60, 70 हजार तुर्को दिल्ली में कब्जो કર્યો અને બાકીના તો કાશ્મીર થી કન્યાકુમારી સુધી બધા હિન્દુઓ હતા। આપણે હિન્દુઓ તરીકે જીવતા હતા। હિન્દુ રાષ્ટ્ર આપણી પાસે જ હતું। આ તુર્કો જે 50, 60 हजार તુર્કો સુલતાનોએ દિલ્હી પૃથ્વીરાજ પાસેથી કબજે કર્યું, તો આ પૃથ્વીરાજ પાસેનું રાજ્ય જે છે એ તુર્કો પાસે ગયું। આ હિન્દુઓનું રાષ્ટ્ર છે એ તો હિન્દુઓ પાસે જ રહ્યું। आ सुल्तानों गया। सुल्तानों पछी सुल्तानों के बाद मुगल शासन आया इस देश के अंदर। तो जब मुगल शासन करते थे इस देश के अंदर, उस वक्त उनकी संख्या 1-2 लाख से ज्यादा नहीं थी। 1-2 लाख से ज्यादा मुगल नहीं थे। बाकी सबके सब हिंदू थे इस देश में। तो जब मुगलों का शासन था तब भी ये देश तो हिंदू राष्ट्र ही था। लेकिन हमारे पास क्या नहीं था? हमारा जो राज्य है वो मुगलों के पास चला गया। नेशन हमारे पास रहा, स्टेट मुगलों के पास चला गया। फिर अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने भी जो हमारा जो स्टेट था, जो मुगलों के पास था, वो राज्य उन्होंने ले लिया। राष्ट्र तो हमारे पास ही था। अंग्रेज आए। अंग्रेज जब हिंदुस्तान को 1947 में छोड़ के गए, उस वक्त अंग्रेजों की संख्या सिर्फ 3 लाख थी। कितनी संख्या थी? पॉपुलेशन कितनी थी अंग्रेजों की? सिर्फ 3 लाख। अंग्रेज 3 लाख थे और वो हमारे ऊपर शासन करते थे। तो हमारा शासन उनके पास चला गया, हमारा स्टेट उनके पास चला गया, हमारी स्टेट मशीनरी उनके पास चली गई। लेकिन हमारा राष्ट्र तो हमारे पास ही रहा। राष्ट्र हमारे पास से गया नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुगलों ने शासन, अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, तुर्कों ने शासन किया, तो हिंदुओं के पास से हिंदुओं का राज्य गया, हिंदुओं का स्टेट गया, हिंदुओं का राष्ट्र गया नहीं। ये विदेशियों के शासन के समय में भी हम तो हमारी हिंदू पद्धति से ही जीते थे। हमारा वे ऑफ लिविंग वो हिंदू ही था। हमारा राष्ट्र उस वक्त भी था, हमारा राष्ट्र आज भी है और हमारा राष्ट्र कल भी रहेगा। राष्ट्र हमारे पास है। तो हमारे पास से क्या गया? तो राज्य चला गया। तो 1947 में हमें आजादी मिली तो हमको ऐसा लगता था कि हमें राज्य मिलेगा, हमारा राज्य हमें मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी मिलेगी तो राम राज्य लाएंगे देश के अंदर।
तो राम राज्य लाएंगे, ऐसी बात महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी तो नहीं रहे इस धरती ऊपर, उसके बाद राज्य आया। कैसा राज्य आया? कौन सा राज्य आया? तो कोई हिंदुओं का स्टेट आया? हमारा राज्य आया? भारतीय हिंदुओं का राज्य आया? नहीं आया। हमारे को बता दिया कि ये जो राज्य है ये तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता की बात करके फिर हिंदुओं को मूर्ख बना दिया, फिर हिंदुओं को साइड में रख दिया। हिंदू साइड में हो गए, बाकी के जो लोग हैं वो मैदान में आ गए। हमारा जो शासन है वो हिंदुओं के पास नहीं आया, हिंदू राज्य हमारे पास नहीं आया। आजादी के बाद भी, लाखों करोड़ों की बलिदान के बाद भी करोड़ों हिंदुओं ने बलिदान दिया। इतना बलिदान के बाद भी 1947 में हिंदू स्टेट नहीं आया। जो हिंदू स्टेट 1205 में हमारे पास से गया, वो हिंदू स्टेट हमारे पास आज भी नहीं है। 1947 में नहीं है, आज भी हमारे पास हिंदू स्टेट नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें हिंदू स्टेट चाहिए, हिंदू राज्य चाहिए, हिंदू राज्य चाहिए, क्योंकि हमारे पास से हिंदू राज्य चला गया है। तो आज की जो धर्म सत्ता की जो स्थापना हुई है, और इस धर्म सत्ता की स्थापना के मौके पर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई कहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तो हथेली में चांद दिखाने जैसी बात है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है ही नहीं। राजनीति शास्त्र के जानकार लोग हैं, जवान के जी यहाँ बैठे हैं, राज्य शास्त्र को जो जानते हैं उनको पता है कि राष्ट्र और राज्य में अंतर है, नेशन और स्टेट में डिफरेंट है, डिफरेंट बिटवीन नेशन एंड स्टेट। We never lost, Hindus never lost nation, Hindus lost state। तो हमें स्टेट चाहिए, हिंदू स्टेट। आज का जो विषय है ये विषय है, आज का विषय ये विषय है। कोई कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहे कि हम देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो इस भ्रमणा में रहना नहीं है लीलानंद जी बापू। राष्ट्र हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ये भ्रमणा में नहीं रहना है। हमें हिंदू स्टेट घोषित करना है, हमें हिंदू स्टेट घोषित करना है, हिंदू राज्य घोषित करना है, हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदू राष्ट्र में हिंदू राज्य चाहिए। क्या हमारी वोकेबुलरी बदलनी पड़ेगी, हमारी डिक्शनरी में चेंज करना पड़ेगा, हमारी समझ में चेंज करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र तो है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के पास हिंदू स्टेट नहीं है। क्या हिंदू राष्ट्र के पास हिंदू स्टेट नहीं है? तो हमें हिंदू स्टेट चाहिए। अभी ये हिंदू स्टेट कैसे बन सकता है ये भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि हिंदू स्टेट कैसे बनेगा। जैसे मैंने बताया कि धर्म सत्ता बन सकती है, 1947 से ये झूठ चल रहा था कि देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्म सत्ता नहीं बन सकती। धर्म सत्ता आज सच्चाई बन गई है। जैसे धर्म सत्ता आज सच्चाई बन गई है, ऐसे हिंदू स्टेट, हिंदू राज्य सच्चाई बन सकता है। और ये हमारा एजेंडा है। हमारे पास तो बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन हमारा जो प्रथम मुद्दा ये है, जब हिंदुओं की धर्म सत्ता खड़ी हुई है, 1 बजे हिंदुओं की धर्म सत्ता खड़ी हुई है, तो इस धर्म सत्ता का जो प्रथम लक्ष्य है वो हिंदू स्टेट चाहिए, हिंदू राज्य चाहिए हमें। तो हिंदू राज्य कैसे मिल सकता है? जैसे धर्म सत्ता आसानी से आज खड़ी हो गई, ऐसे हिंदू राज्य भी आसानी से हमको मिल सकता है। बता दूं आपको, हिंदू राज्य है वो अपने को आसानी से मिल सकता है। अभी जो हिंदू राज्य हमें जो जैसे धर्म सत्ता है वो हमने संविधान के अंतर्गत खड़ी की है। धर्म सत्ता हमें शास्त्र के ज्ञान के अंतर्गत की है, कानूनी समझदारी के अंतर्गत की है। तो ऐसी तरह से हमारा जो हिंदू स्टेट जो है, हिंदू राज्य है, तो हिंदू राज्य भी
कानून के अंतर्गत ही होगा, कानून के बाद तो हिंदू स्टेट भी नहीं जा सकता है। तो हमें हिंदू राष्ट्र में हिंदू राज्य चाहिए। अभी उस हिंदू राज्य का क्या नाम होगा? तो आज की तारीख में हमारे देश का जो नाम है, नाम ऐसा है कि सोवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सही बात है ना जवान के जी? सोवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसा हमारा देश का नाम संविधान के अंदर है। तो हमें हिंदू राज्य चाहिए। तो हिंदू राज्य का जो रूप है आज की तारीख में, मतलब वो हिंदू राज्य को, हिंदू स्टेट को हिंदू रिपब्लिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संविधान की भाषा में, सामान्य भाषा में हम कहेंगे हमें हिंदू राज्य चाहिए, लेकिन संविधान की भाषा में हमें कहना पड़ेगा कि हमें हिंदू रिपब्लिक चाहिए, मतलब हिंदू गणराज्य चाहिए। क्या चाहिए? हिंदू गणराज्य। हिंदू राज्य नहीं, हिंदू राज्य ले लेंगे, साधारण आदमी बोल सकता है कि हमें हिंदू राज्य चाहिए, लेकिन कानून को जानने वाले जो लोग हैं वो कहेंगे कि हमें हिंदू रिपब्लिक चाहिए। क्या चाहिए? हिंदू रिपब्लिक चाहिए, हिंदू गणराज्य। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू राष्ट्र हम थे, आज भी हम हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू राष्ट्र रहेंगे। अभी हमारी आवश्यकता जो है वो हिंदू गणराज्य की है, हिंदू राज्य की है। हिंदू राज्य इस देश में बनना चाहिए और ये हमारा पहला पॉइंट है धर्म सत्ता का। आज जो गुजरात में जो धर्म सत्ता बैठी है उसका पहला पॉइंट ये है कि जो अपना जो देश है, इस देश में हिंदुओं का राज वापस आना चाहिए। इस देश को हिंदू गणराज्य हमें बनाना है। क्या बनाना है? हिंदू गणराज्य। इस देश को हिंदू गणराज्य बनाना है, नहीं कि हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र हम है, हमें हिंदू गणराज्य बनाना है। और हिंदू गणराज्य बनाना ये भी बहुत आसान चीज है, इसका लंबा प्रोसीजर मैं आपको नहीं बताता हूं, लेकिन हिंदू गणराज्य 24 घंटे में बन सकता है। कितने में? दीदी कितना समय में? दीदी कितना समय में? 24 કલાક में आपने लाखे का શું વાત કરે છે? આ શું વાત કરે છે કે 24 કલાકમાં આ દેશ હિન્દુ ગણરાજ્ય ડિક્લેર થઈ શકે એમ છે। There should be a will power to do it. इच्छा शक्ति જોઈએ, इच्छा शक्ति જોઈએ। जो हिंदू गणराज्य आ देश ने बनावવાનો હોય तो आ राज सत्ता जे छे, आ राज सत्तानी साथे, आ राज सत्ताना सपोर्ट में जो धर्म सत्ता उभी रहे, एक अबज हिंदुओनी धर्म सत्ता आ राज सत्ता ने बाध्य करे। શું करे? बाध्य करे, फर्ज पाड़े कि आ देश ने हिंदू गणराज्य जाहिर करो। इस देश को हिंदू रिपब्लिक, हिंदू गणतंत्र घोषित करने के लिए ये धर्म सत्ता है, राज सत्ता को बाध्य करना चाहिए। धर्म सत्ता खड़ी होगी, राज्य सत्ता को बाध्य करेंगे तो 24 घंटे में हिंदू रिपब्लिक इस देश में पैदा हो सकता है। और ये बात जब मैं आपको करता हूं तो मैं चैलेंज देता हूं, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, मेरे साथ कानून की चर्चा करो, संविधान की चर्चा करो कि कैसे 24 घंटे में ये हिंदू रिपब्लिक बन सकता है, हिंदू गणराज्य बन सकता है। मैं चैलेंज देता हूं, पूरा देश आज सुन रहा है, मैं चैलेंज देता हूं, कोई ऐसा कहे कि संभव नहीं है तो आ जाए मेरे पास, आ जाए मेरे पास, मैं समझा दूंगा। खाली इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प और इच्छा शक्ति हो गई तो हिंदू गणराज्य प्रस्थापित हो सकता है। ये बात
में यही रखता हूं। अभी आगे की बात में सिर्फ इतने ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतनी ही बात मैं आपको बताऊंगा कि धर्म सत्ता बन गई है तो हमारे दूसरे तो इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या है। हमारा पहला मुद्दा ये है, हमारे देश का पतन हुआ, हमारा शासन हमारे हाथ से चला गया। 1200 साल तक हिंदुओं को 1200 साल तक हिंदुओं को बहुत भयंकर परिस्थिति में से हिंदुओं को पसार होना पड़ा। तो उसके लिए सिर्फ विदेशी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम भी जिम्मेदार है, हम हिंदू भी जिम्मेदार है। हमारे पास भी कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हिंदुओं को विदेशियों ने लूटा, बर्बाद किया हिंदुओं को, और आज भी बर्बादी करने वाले हमारे आजू बाजू में घूम रहे हैं। आज भी बर्बादी करने वाले हमारे आजू बाजू में कम नहीं है। क्या है हमारी कमी? हमारी दो मुख्य कमियां है। एक मुख्य कमी है कि हम हिंदू, हमारा सनातन धर्म 20,000 संप्रदायों में बटा हुआ है। कितने संप्रदायों में? 20,000 संप्रदायों में बटा हुआ है। हजारों साल से हम इतने संप्रदायों में बटे हुए हैं और आज भी हम इतने संप्रदायों में बटे हुए हैं। तो हमारी आवश्यकता ये है कि सब संप्रदाय एक मंच पर आ जाए। यदि सांप्रदायिक समन्वय हो गया, हमारे यहाँ यदि सांप्रदायिक समन्वय हो गया तो हम विश्व की महासत्ता गिने चुने दिनों में हो सकते हैं। हमारे पास साधु संतों की इतनी बड़ी शक्ति है, दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन जितनी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी संख्या हमारे सनातन धर्म के साधुओं की है भारत में और विदेशी देशों के अंदर। लेकिन समस्या हल नहीं होती है क्योंकि हम बटे हुए हैं। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि सनातन धर्म के सब संप्रदायों के साधु संत आज उपस्थित है। एक कमी है, उसमें से हम मुक्त हो गए। सनातन धर्म के संप्रदायों का समन्वय जो है आज एक मंच पर आ गए, गुरु वंदना मंच पर आ गए, तो सांप्रदायिक समन्वय हमारा खड़ा हो गया है। एक समस्या में से हम मुक्त हो गए। अभी दूसरी समस्या है संप्रदायवाद की समस्या के बाद दूसरी समस्या जातिवाद की है। इस देश में हिंदू 30,000 जातियों में बटे हुए हैं, साधु संत 20,000 संप्रदायों में बटे हुए हैं और हिंदू 30,000 जातियों में बटे हुए हैं। तो ये इतना बंटवारा जब समाज का हो गया तो ये समाज को, ये मुट्ठी भर लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, वो नहीं डराएंगे तो फिर कौन डराएगा? फिर डराएंगे क्योंकि इनको पता है कि बिखरे हुए लोग हैं, इनके पास एकता नहीं है। जाति और संप्रदाय में बटे हुए लोग हैं, उनको एक एक करके डिवाइड एंड रूल खत्म करो। इनको वैश्विक परिबल फोर्सेस काम करते हैं हिंदुओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे अंदर भी फोर्सेस काम करते हैं हिंदुओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सांप्रदायिक समन्वयता, धर्म सत्ता हो गई, सब साधु संत एक पर मंच पर आ गए, एक सांप्रदायिक समन्वयता की शुरुआत हो गई है, ये धर्म सत्ता खड़ी हो गई है। अभी इसका जो पहला जो टारगेट है वो हिंदू राज्य में वापस मिले, और उसके साथ दूसरा जो महत्व का टारगेट है कि हिंदू समाज जातिवाद से मुक्त हो। अब हम हमारे ऊपर दया करें, हमें दूसरों के ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है। हिंदू खुद इकट्ठे होकर हम खुद अपने ऊपर दया करें कि क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। 1200 साल की गुलामी के बाद भी सुधरे नहीं है, हम जातियों में बटे हुए हैं। तो जातिवाद से मुक्ति एक बहुत महत्व की बात है। संप्रदायवाद में से मुक्त होके सनातन धर्म पैदा हो और जातिवाद से मुक्त होके एक पराक्रमी हिंदू समाज इस भारत में पैदा हो। एक पराक्रमी समाज, हिंदू समाज, पराक्रमी हिंदू समाज
इस धरती पर पैदा हो। एक जमाना था कि हिंदू के सामने आंख ऊंची करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक जमाना था पूरी दुनिया के ऊपर सनातन धर्मी रहते थे। आज क्या परिस्थिति हुई है आप और हम जानते हैं। तो इसमें से मुक्त होना वो हमारी दूसरी महत्व की आवश्यकता है। लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं आप समझो कि साधु संत ऐसा कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। मैं हैरान हूं कि संविधान में लिखा है गौ हत्या बंद करना। अरे संविधान ने हुक्म दिया है कि गौवध बंद करो, कानून बन जाते हैं। गाय तो कटती रहती है। अभी साधु संत मांग के क्या मांगते हैं? पहली मांग तो ये साधु संतों की गौ हत्या का गौ हत्या है वो बंद हो। अच्छा, उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी बात है कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। अरे वेदों ने गाय माता को विश्व की माता कहा है। गावो विश्वस्य मातरः। वेद कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरः। आ गाय आ तो विश्वनी माता છે। ગાય વિશ્વની માતા છે એવું કે છે। ખરેખર તો આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ, આપણે યુનોમાં બેસવું જોઈએ, યુનોની છાતી ઉપર કે ગાય માતાને વિશ્વ માતા ઘોષિત કરો। ખરેખર તો આપણે એ સ્ટેજ ઉપર હોવું જોઈએ। એ વાત તો બાજુમાં રહી ગઈ। આપણા દેશની અંદર 75 વર્ષ થયા આઝાદી મળ્યા પછી, અને હજુ हमारे कालिदास बापू અત્યારે જેલ બહાર ગયા છે। કાલિદાસ બાપુ જેવા બીજા લાખો સંતો બૂમો પાડે છે કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરો। બાપજી આપને હું કહું છું, આ ડીજી વંજારા આપને કહે છે કાયદો સંવિધાન શાસ્ત્રો વાંચ્યા પછી કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવી હોય તો ફક્ત 24 કલાક લાગે। 24 કલાકથી વધારે સમય લાગે નહીં। એક બીજો મુદ્દો છે જે હિન્દુ રાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલો છે, હિન્દુ સાથે જોડાયેલો છે, અને એ છે કે સંસ્કૃતને રાષ્ટ્રભાષા જાહેર કરો। જો સંસ્કૃત ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા જાહેર કરો એવું મારા સાધુ સંતો કહે છે। આ સનાતન ધર્મને બચાવવો હોય તો સાધુ સંત પછી કોઈ મહત્વની વસ્તુ આ દેશને બચાવી શકે તો એનું નામ છે સંસ્કૃત ભાષા। આ સંસ્કૃત ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા ઘોષિત કરો। આ સાધુ સંતો રાજી પાડે છે, બૂમો પાડે છે। આપણે એમ નથી કહેતા, આપણે એમ કહીએ છીએ કે હિન્દી જે છે એ રાજભાષા છે, ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ। હિન્દી છે એ રાજભાષા તરીકે ચાલુ રહેશે। હિન્દીનું ટાઇટલ છે ઓફિશિયલ બાપજી ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ। હિન્દીનું નામ છે ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ, એટલે કે સરકારી ભાષા। ઓફિશિયલ કાયદેસરની સરકારનો જે વ્યવહાર છે એ હિન્દી ભાષામાં થાય। તો ઓફિશિયલ ભાષા એટલે રાજ્ય ભાષા। હિન્દી રાજ્ય ભાષા બને જે છે અત્યારે રાજ્ય ભાષા તરીકેનું એનું સ્ટેટસ ચાલુ રહે, પણ એની સાથે સંસ્કૃતને રાષ્ટ્રભાષા તરીકે ઘોષિત કરવી જોઈએ। અને આ પહેલા આ બહુ સહેલું કામ છે બાપજી। હવે કિશોરદાસ બાપુ, કૃષ્ણાનંદજી બાપુ 24 કલાકથી વધારે સમય દુનિયામાં થતો નથી। ડીજી વંજારા પાસે 24 કલાકથી વધારે સમય છે નહીં। કોઈ પણ કામ કરવું હોય જો કરવું હોય ને તો 24 કલાક લાગે। હવે ના કરવું હોય તો 24 વર્ષ લાગે, ના કરવું હોય તો 75 વર્ષ લાગે। અત્યારે 75મું વર્ષ ચાલે છે। ના કરવું હોય તો 75 વર્ષ લાગે, અને ના કરવું હોય તો હજુ બીજી સહસ્ત્રદીઓ નીકળી જાય, એ કામ ના થાય। અને કરવું હોય તો સવાર સૂર્યોદય થાય અને સૂર્યાસ્ત પહેલા જે સંસ્કૃત ભાષા છે રાષ્ટ્રભાષા બની જાય। હવે આના સિવાય સંત મહાત્માઓના ઘણા મંત્ર છે। હિન્દુ સંતોના મંદિરો સાથે સંકળાયેલા મંત્ર, મઠો સાથે સંકળાયેલા મંત્ર, આશ્રમો સાથે સંકળાયેલા મંત્ર, એવા કાયદા હિન્દુઓ પર ઠોકીને ચાલે છે। 1947 પછી હિન્દુ ધર્મ ઉપર, હિન્દુ ધર્માવલંબીઓ ઉપર એવા કાયદા ઠોકીને ચાલે છે કે હિન્દુઓને એમ
આપણે હિન્દુ તરીકે જન્મ્યા એના આ બહુમતીમાં જન્મ્યા એના કરતા તો પેલા લઘુમતીઓમાં જન્મ્યા હોત તો આપણું સન્માન વધારે થાય. આવી પરિસ્થિતિ આ દેશની અંદર થઈ ગઈ છે. તો એ હિન્દુ સંતોના સૂત્ર છે એ હું જાણું છું, પણ આની પણ વિશેષ ચર્ચા હું નહીં કરું. એક બીજા મહત્વના મુદ્દા ઉપર આવી અને મારી વાત હું પૂરી કરીશ. હવે મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે છેલ્લા 1 વર્ષ આપણે ધર્મ સત્તાની સ્થાપના કરી. હવે ક્યાંય આપ સંત મહાત્માઓને હું પ્રશ્ન પૂછું છું કે ક્યાંય ડીજી વંજારાએ એના પ્રવચનમાં રાજ સત્તાના વિરુદ્ધની ક્યાં વાત કરી? ક્યાં રાજ સત્તાની વિરુદ્ધ आपने बात करी? राज सत्ता के खिलाफ हम कहीं बोले नहीं है. डीजी वंजारा के 1 साल के जो उनके जो स्पीचेस है वो रिकॉर्डेड है. कहीं भी सरकार के बारे में हमने बोला नहीं है, कहीं भी राज सत्ता के बारे में हमने बोला नहीं है. हम ये कहते हैं कि राज सत्ता और धर्म सत्ता कदम से कदम मिला के इस देश का कल्याण करे, स्टेट का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, हिंदुओं का कल्याण करे, बिन हिंदुओं का कल्याण करे, पूरी दुनिया का कल्याण करे. राज सत्ता और धर्म सत्ता, राज सत्ता से देश विश्व सत्ता बन सकता है, राज सत्ता से देश विश्व सत्ता बन सकता है और धर्म सत्ता से देश विश्व गुरु बन सकता है. ये देश विश्व सत्ता बने, महासत्ता बने और इसके साथ ये देश विश्व गुरु भी बने. बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ललित किशोर जी बापू આ ભારત માતા જે ફરીથી વિશ્વગુરુ બનવો જોઈએ કે ના બનવો જોઈએ? અને આ ભારત દેશ મહાસત્તા બનવો જોઈએ કે ના બનવો જોઈએ? હવે મહાસત્તા બનાવવાનું કામ રાજ સત્તાનું છે અને વિશ્વગુરુ બનાવવાનું કામ ધર્મ સત્તાનું છે. આ ધર્મ સત્તા આ દેશની આ રાજ્યની અંદર આજે પેદા થઈ છે, આજે એની ઉત્પત્તિ થઈ છે, આજે શ્રી ગણેશ થયા છે, આજે બીજ વવાઈ ગયું છે. તો હું આપને એમ કહું છું કે જ્યારે સાધુ સંતો અને સાધુ સંતો પાસે વિચાર મૂકનાર ડીજી વંજારા રાજ સત્તાના વિશે કંઈ જ બોલતા નથી અને સરકારને વચ્ચે લાવતા નથી, તો એવા સંજોગોમાં જો ધર્મ સત્તા જે છે એ રાજ સત્તામાં હસ્તક્ષેપ કરવા માંગતી નથી. મેં પહેલા કહ્યું છે ધર્મ સત્તા હંમેશા નિષ્પક્ષ હોય છે. શાસ્ત્રોના આધાર છે મારી પાસે. ધર્મ સત્તા નિષ્પક્ષ હોવી જોઈએ, ધર્મ સત્તા સ્વતંત્ર હોવી જોઈએ, ધર્મ સત્તા જે છે એ આત્મનિર્ભર હોવી જોઈએ, ધર્મ સત્તા છે એ ઓટોનોમસ હોવી જોઈએ. આ પ્રકારની ધર્મ સત્તાનો વિચાર લઈને ધર્મ સત્તા બનાવી છે અને એ પ્રમાણે ચાલીએ છીએ. હવે રાજ સત્તા તરફથી જો હસ્તક્ષેપ થાય તો શું કરવું? આ મુદ્દો છે મારી પાસે. ધર્મ સત્તા રાજ સત્તાને હેરાન કરવા માંગતી નથી, આપણે બનાવેલી રાજ સત્તા છે. આજે ભારતની રાજ સત્તા મજબૂત થઈ છે, એમાં આપણું બધાનું યોગદાન છે કે નહીં? છે કે નહીં યોગદાન? સાધુ સંતોનું યોગદાન છે કે નહીં? ડીજી વંજારા જેવા પોલીસ અધિકારીઓનું યોગદાન છે કે નહીં? 9 વર્ષ સુધી જેલમાં રહ્યા કે નહીં રહ્યા? તો આ દેશની રાજ સત્તા મજબૂત થઈ છે, તો એમાં આપણું બધાનું યોગદાન છે. આ 1947 પહેલા આ દેશમાં રાજ સત્તા નબળી હતી, તો એના કારણે આપણે ગુલામ બનવું પડ્યું. હવે રાજ સત્તા મજબૂત આપણે કરી છે, તો આ રાજ સત્તા ધર્મ સત્તામાં હસ્તક્ષેપ કરે તો શું કરવું જોઈએ? હું આપને પ્રશ્ન પૂછું છું. હું પહેલા દિવસથી બહુ સ્પષ્ટ છું. પહેલા દિવસથી આ ઘડી સુધી હું સ્પષ્ટ છું કે ધર્મ સત્તા રાજ સત્તામાં હસ્તક્ષેપ કરવા માંગતી નથી. અને જો ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા ધર્મ સત્તામાં હસ્તક્ષેપ કરશે તો ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. આ ધર્મ સત્તા ન બને. એ બાત हिंदी फिर से हिंदी बोलो. ये बात
धर्म सत्ता शांति धर्म सत्ता राज सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। पूरा देश सुन रहा है और जिम्मेदार आदमी बोल रहा है। धर्म सत्ता राज सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। तो हम ये भी चाहते हैं कि धर्म सत्ता राज सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, तो हम ये भी चाहते हैं कि राज सत्ता को धर्म सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका काम है राज सत्ता चलाने का, चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम राज सत्ता चलाओ, तुम राज सत्ता चलाओ, हमने राज सत्ता बना के दी है तुमको। राज सत्ता चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? आज संत महात्मा यहाँ आज उपस्थित है। आप सबको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप संत महात्मा, ये विचार मैंने आपके पास रखा धर्म सत्ता का, ये विचार आपने पकड़ लिया और आप महापुरुषों ने एक स्वयंभू धर्म सत्ता पैदा कर दी है। स्वयंभू धर्म सत्ता, अपनी जो धर्म सत्ता वो स्वयंभू होती है, स्वतंत्र होती है। एक स्वयंभू धर्म सत्ता पैदा हो गई है। ये धर्म सत्ता पैदा हुआ, ये बीज किसने रोपा? डीजी वंजारा ने ये विचार व्यक्त किया और आप महापुरुषों ने पकड़ लिया कि बात सही है, धर्म सत्ता बननी चाहिए। तो मेरे कहने से, मेरे विचार की वजह से आप महापुरुषों ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। इस वजह से यदि राज सत्ता में से कोई संत महात्मा को हैरान करेगा तो डीजी वंजारा को क्या करना चाहिए आप बताओ। आप मुझे बताओ, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ और मैंने ये पहले से डिक्लेयर किया है, मैं साधु संतों का सेवक हूँ। मैं सेवक बन के साधु संतों के पास आया हूँ, मैं साधु संतों का सैनिक बन के आया हूँ बाप जी आपके पास। मैं साधु संतों का सैनिक बन के आया हूँ और साधु संतों का रक्षक बन के आया हूँ। ये धर्म सत्ता साधु संतों ने बनाई है और इसके लिए यदि राज सत्ता साधु संतों को हैरान करने की कोशिश करेगी, 5 अगस्त को यह कार्यक्रम हुआ, उसके पहले भी कोशिश हुई कि साधु संत एक नहीं बने, साधु संत संगठित नहीं हो, साधु संतों के पास सत्ता आ जाएगी तो क्या होगा। तो 5 अगस्त के पहले कोशिश की गई साधु संतों को हैरान करने की, मिसगाइड करने की कि आप कार्यक्रम में नहीं जाना है। फिर भी साधु संत बड़ी मात्रा में 5 अगस्त को आए कि नहीं आए। अभी आपको ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, सिर्फ इतना ही कह दूंगा, ये 5 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम अपना पूरा हुआ, गुरु वंदना मंच की स्थापना हुई। गुरु वंदना मंच की स्थापना के बाद तय किया गया, आप संत महापुरुषों ने, हमारे मुक्तानंद बापू जी ने यहाँ से घोषित किया कि ये जो धर्म सत्ता प्रस्थापना का जो काम है वो चापड़ा आश्रम में होगा। किया था कि नहीं किया था? घोषणा की थी कि नहीं की थी? अभी चापड़ा आश्रम में वो कार्यक्रम नहीं हुआ, फिर वहां से जूनागढ़ में चला गया। कहां चला गया? चापड़ा से जूनागढ़ चला गया और कारण नहीं गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अकारण नहीं गया है। चापड़ा में कार्यक्रम था, वहां से जूनागढ़ में चला गया और जूनागढ़ में 1 महीने से मेहनत आप संत महात्मा करते थे कि जूनागढ़ जाना है, जूनागढ़ जाना है, और वहां बसें हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में बसों का वो बुकिंग हुआ कि जूनागढ़ जाना है। सिर्फ 2 दिन बाकी था, सिर्फ 2 दिन बाकी था और
जूनागढ़ में अक्षर मंदिर में यह कार्यक्रम था, तो अक्षर मंदिर में कार्यक्रम नहीं हुआ और सिर्फ 2 दिन की मोहलत में ये जूनागढ़ का जो कार्यक्रम है वो गांधीनगर में शिफ्ट करना पड़ा। गांधीनगर में शिफ्ट करना पड़ा। तो आप तो महान पुरुष है और हमारे जो साथी है उन्होंने एक पॉजिटिव लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या बिगाड़ा है तुम्हारा संतों ने राज सत्ता का क्या बिगाड़ा है? क्यों पीछे पड़ गए हो? संतों के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्यों फोन करते हो अलग अलग संतों को? क्यों डराते हो उनको? ये राज सत्ता में बैठे हुए धर्मद्रोही सुन लो, ये गुजरात की राज सत्ता में बैठे हुए धर्मद्रोही, ये गुजरात की सत्ता में बैठे हुए अधर्मी, ये गुजरात की सत्ता में बैठे हुए नास्तिक लोग, ये जो मेरे साधु संत यहाँ बैठे हैं उनको फोन कर करके उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हैरान करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे साधु संतों के कंधे पर बैठ के तुम सत्ता तक पहुंचे हो। साधु संतों के कंधे पर बैठे, साधु संतों के कंधे पर बैठ के तुम सत्ता पर बैठे हो। अभी उन साधुओं को तुम डराने की कोशिश करते हो, साधुओं को हैरान करने की कोशिश करते हो। नहीं चलेगा। हर हर महादेव। धर्म सत्ता के साथ जो साधु संत जुड़े हुए हैं, धर्म सत्ता के साथ जो साधु संत जुड़े हुए, बड़े से बड़े साधु से लेकर साधु सब महान होते हैं, समान होते हैं। मेरे लिए कोई छोटा और बड़ा साधु नहीं होता है, लेकिन जितने भी प्रकार के साधु संत हैं धर्म सत्ता के साथ साधु जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से यदि किसी ने साधु संत को हैरान करने की कोशिश की तो डीजी वंजारा साधु संतों के आगे खड़ा है। डीजी वंजारा साधु राज सत्ता और धर्म सत्ता, राज सत्ता और साधु संतों के बीच में एक डीजी वंजारा हिमालय बन के खड़ा है। ये हिमालय बन के खड़ा है, साधु संत को हैरान करके देखो। मैं अभी देखना चाहता हूं कैसे हैरान करते हो। आज तक जितना भी फोन गया, ये बातें यदि जूनागढ़ से कार्यक्रम इधर नहीं आता तो ये बातें मैं मुझे कहने का कोई कारण नहीं था, मुझे ये बातें करने का कारण नहीं था। लेकिन 5 अगस्त के पहले साधु संतों को फोन कर करके उनको डराने की कोशिश की, ये कार्यक्रम इधर करवा दिया और उसके बाद भी साधु संतों को फोन कर करके इनको डराने की कोशिश की। अरे ये साधु संत है, ये साधु संत का उनकी जो चेतना है वो परमात्मा के साथ जुड़ी है। तुम्हारे जैसों से साधु नहीं डरेगा, तुम्हारे जैसों से ये साधु डरने वाला नहीं है। अरे साधु डरता तो साधु बनता ही नहीं, साधु यदि डरता तो साधु बनता ही नहीं। अरे तुम तो 5 साल के लिए राज सत्ता ऊपर आते हो, तुम्हारी सत्ता की अवधि कितनी है? सिर्फ 5 साल के लिए। अब तो मरते दम तक है। तुम्हारी अवधि सिर्फ 5 साल के लिए है। ये IAS IPS ऑफिसर होते हैं 30-40 साल के लिए होते हैं। ये हमारे साधु संत आजीवन है, उनकी धर्म सत्ता उनकी धर्म सत्ता आजीवन है। जिस दिन वो दीक्षा लेते हैं उस दिन से लेकर जब वो ब्रह्म दिन होते हैं तब तक वो साधु रहता है, संत रहता है, उसके साथ परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो कभी डरेगा नहीं, साधु कभी डरा नहीं, आज भी नहीं डरता है और भविष्य में भी नहीं डरता है। इसकी साबिती यह है कि इतना सब डराने की कोशिश होने के बाद भी ये हॉल फुल हो गया है, बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं। तो पहली बात तो ये मेरी फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा धर्म बनता है डीजी वंजारा का। डीजी वंजारा का धर्म बनता है कि ये धर्म सत्ता का कंसेप्ट मैंने दिया, आप उस पर चल रहे हैं। इसकी वजह से
आपको कोई भी तकलीफ देने की कोशिश करेगा, कोई भी तकलीफ देने की कोशिश करेगा, तो मैं कसम खाता हूं भारत माता की, कसम खाता हूं मेरी माता की, कोई भी साधु संत को हैरान करने की कोशिश करेंगे तो धर्म युद्ध हो जाएगा गुजरात में। यदि युद्ध हो गया इस धरती के ऊपर, गुजरात में युद्ध हो गया, युद्ध मतलब कानून के अंतर्गत युद्ध की बात करता हूं, पुलिस अधिकारी रहा हूं, कानून तोड़ने की बात नहीं करता हूं मैं। यदि हमारे साधु संतों को हैरान किया तो धर्म युद्ध हो जाएगा, और धर्म युद्ध हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, साधु संतों की नहीं। ये राज सत्ता की जिम्मेदारी होगी, ये धर्म सत्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये हस्तक्षेप तुम्हारी ओर से आया है, साधु संत की ओर से हस्तक्षेप लेके आया है। और जब साधु संतों के कंधे पर बैठ के सत्ता पर गए हो, उस साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करने का, संतों को डराने की कोशिश करेगी। आप जानते एक प्रसिद्ध एक साधु थे, कन्हैयाराम बापू जैसे महापुरुष थे, आप जैसे हरिहरानंद जी बापू में बैठे थे। तो गुरुजी अपनी कुटिया में बैठे थे, एक चूहा दौड़ता वो गुरुजी की गोद में आ गया, संत की गोद में चूहा आ गया। संत थे वो, ध्यानस्थ थे, एक चूहा गोद में आके बैठ गया, बोले गुरुजी बचाओ। चूहे ने बोला गुरुजी बचाओ। तो गुरुजी का भी क्या है, ध्यान भंग क्यों करता है, क्या प्रॉब्लम है? तो कहा गुरुजी बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी हुई है, तो चल तू बिल्ली बन जा। क्या? तो वो संत जो थे उन्होंने वो चूहे को फिर उसको बिल्ली बना दिया। फिर कुछ दिन गए तो फिर वो बिल्ली है, वो दौड़ती फिर से कुटिया में आई और साधु के गोद में आके बैठ गई कि गुरुजी बताओ, अरे क्या है, क्यों मुझे ध्यान भंग करता है? तो बिल्ली ने कहा कि गुरुजी कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, कुत्ता मुझे खा जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है तू कुत्ता बन जा। तो वो कुत्ता बन गया, मौत से कुत्ता घूम रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, 10 दिन के बाद फिर वो कुत्ता दौड़ता फिर से आया कुटिया में और गुरुजी के गोद में आके बोला गुरुजी बचाओ। अरे क्यों ध्यान भंग करता है, क्या प्रॉब्लम है? अरे बाबू जी शेर पीछे पड़ा हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, चल तू शेर बन जा। तो कुत्ते को शेर बना दिया। अभी जो शेर है वो घूम रहा था, अभी काफी दिन चला गया और काफी दिन के बाद गुरुजी फिर से ध्यान में बैठे हुए थे। ये जो शेर है वो वहां आके गर्जना करने लगा, ऐसा करने लगा। तो गुरुजी ने कहा भाई क्या है, क्यों हैरान करता है, क्या है, अभी क्या तकलीफ है? तू चूहा था तो बिल्ली से बचाने के लिए मैंने तुमको बिल्ली बना दिया, तो बिल्ली था और कुत्ते से बचाने के लिए मैंने तुमको कुत्ता बना दिया, तो कुत्ता था और कुत्ते शेर से बचाने के लिए मैंने तुमको शेर बना दिया। अब क्या चीज है, अभी किसका डर लगता है, क्यों आया है, क्यों मेरा ध्यान भंग करता है? तो फिर वो शेर बोला कि गुरुजी 7 दिन से मैं घूम रहा हूँ, शिकार की खोज में घूम रहा हूँ, तो मुझे शिकार नहीं मिला है, मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाना चाहता हूँ। वो शेर बोलता है कि मैं आपको खाना चाहता हूँ क्योंकि भूखा हूँ, मुझे कोई शिकार मिला नहीं है। तो फिर गुरुजी ने आंख खोल के उसके सामने देखा, अच्छा तुम चूहे थे, चूहे में से मैंने तुमको बिल्ली बनाया, बिल्ली में से मैंने तुमको कुत्ता बनाया, कुत्ता में से मैंने तुमको शेर बनाया,
अब तू मुझको ही खाने के लिए आया है, चल फिर से के तू अभी वह बन जाए। पुनः मुझको भव, क्या पुनः मुझको भव। आप पंचतंत्र की वार्ता छे, आप जानो छो, तो संत ने कहा कि पुनः मुझको भव। हम चाहते हैं कि राज सत्ता चले, बराबर चले। हम राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता चलाएंगे, न धर्म सत्ता राज सत्ता में हस्तक्षेप करेगी, न धर्म सत्ता राज में, न राज सत्ता धर्म में हस्तक्षेप करेगी। एक दूसरे के अनुकूल, एक दूसरे के पूरक बन के ये तंत्र चलना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन हमारे कंधे पर बैठ के सत्ता में गए हो और यदि हमको खाने की कोशिश करोगे तो फिर हम भी कहेंगे कि पुनः मुझको भव। फिर हम भी कहेंगे कि जहां थे वहां बेटे आ जाओ, तुम जहां थे वहां तुम आ जाओ। तुम्हारी लायकात नहीं है वहां रहने की, तुम्हारी लायकात नहीं है, तुमने संतों को सताया है। जिनके कंधे पर बैठ के तुम वहां बैठे हो, उनको तुम सता रहे हो। तो मैं आप महापुरुषों को गारंटी देता हूं कि आज तक आपने हिम्मत दिखाई है, जो सनातन धर्म के साधु में जो हिम्मत होनी चाहिए, सनातन धर्म के संत में जो हिम्मत होनी चाहिए, सनातन धर्म के महापुरुषों में जो निर्भयता होनी चाहिए, वो निर्भयता आपने दिखाई है। बहुत कुछ फोन आए, मत जाना, लेकिन फिर इतनी संख्या में आप आए हैं, ये हिम्मत आप बरकरार रखना। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। આજની તારીખે આપણો જે કાર્યક્રમ થયો અને એમાં જિલ્લા કક્ષા, વિભાગ કક્ષા અને રાજ્ય કક્ષાના સંગઠનનું માળખું આજે આપણે ત્યાં બન્યું છે। इस बात पर आने के पहले मैं फिर से बात कर देता हूं कि अपने मुक्तानंद बापू के साथ आज मेरी सुबह में बात हुई। तो मुक्तानंद बापू तो आज नहीं आए हैं, नहीं आने का और कोई कारण नहीं है। हमें ऐसा नहीं समझने का है कि मुक्तानंद बापू डर गए इसलिए नहीं आए। मुक्तानंद बापू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वो आज नहीं आए हैं, वो अपने साथ ही है। आज जो संत आए हैं वो संत तो धर्म सत्ता के साथ है, लेकिन जो संत नहीं आए वो भी हमारे साथ ही, ऐसा समझ लेने का, वो भी हमारे साथ ही है। और दूसरी बात बता दूं कि मुक्तानंद बापू जी यहाँ उपस्थित नहीं रहे हैं, लेकिन मुक्तानंद बापू जी ने सदानंद जी बापू को, उनके जो पट्ट शिष्य है, उनको यहाँ उपस्थित रखा हुआ है। हम आपको नतमस्तक है सदानंद स्वामी जी, हम आपको नतमस्तक है, आप यहाँ पधारे हैं। इतना ही नहीं, मुक्तानंद बापू जी ने जो हमारे अर्जुन सिंह जी राठौड़ है, जो उनकी संस्था के चीफ प्रबंधक है, वो भी आए हुए हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं राठौड़ साहब। आप खड़े होकर सब साधु संतों को जरा अभिवादन कर दीजिए, आप सबको वंदन कर दीजिए। तो मुक्तानंद बापू के बारे में भी कोई गैर समझ रहनी नहीं चाहिए। मुक्तानंद बापू हमारे साथ थे, हमारे साथ है और हमारे साथ रहेंगे। जो आज साधु संत उपस्थित है आपको हम नतमस्तक हूँ, जो साधु संत उपस्थित नहीं है उनको भी मैं नतमस्तक हूँ। और आज नहीं आए तो कल वो हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो भी हित चिंतक है, वो साधु संत हित चिंतक है। हम साधु संतों का विभाजन नहीं चाहते, हमारे साथ है वो तो साथ है, जो नहीं है वो आज नहीं तो कल हमारे साथ आएंगे। और ऐसी एक जबरदस्त स्थिति खड़ी होगी कि इस देश का और इस विश्व का कल्याण होगा। अंत में मैं एक बात बता देता हूँ कि आज જે ગઠન થયું છે, સંગઠન થયું છે, તો એમાં કોઈને એમ ના લાગે કે આ સંગઠન પૂરું થઈ ગયું છે। હું સ્પષ્ટતા કરવા માંગુ છું, જિલ્લા કક્ષાએ
ખાલી બે ત્રણ જ સાધુ સંતોને આપણે સમાવ્યા છે. હવે જે બે ત્રણ સાધુ સંતો છે એ સાધુ સંતોના સલાહ મશવરાથી જિલ્લા કક્ષાએ 11 સંતોની સમિતિ બનશે. એટલે દરેક જિલ્લાની અંદર જે પણ કર્મઠ અને સક્રિય સાધુ સંતો છે એમને યોગ્ય સ્થાન મળશે એ આપને હું સ્પષ્ટતા કરવા માંગુ છું. વિભાગ લેવલે પણ સંગઠન પૂરું થઈ ગયું નથી અને નિજાનંદ બાપુ રાજ્ય કક્ષાએ પણ સંગઠન પૂરું થઈ ગયું નથી. આ તો જ્યારે આ તકલીફો આવવાની ચાલુ થઈ ચારે બાજુથી અને એના કારણે પછી દોડાદોડી કરીને જેટલું થયું એટલું કર્યું બાપજી, જેટલું થયું એટલું કર્યું અને બાકીનું હજુ કરવાનું બાકી છે. તો સ્ટેટ લેવલે પણ માળખું મોટું થશે, વિભાગ લેવલે માળખું મોટું થશે અને આપમાંથી જે મહાન સંતો છો એ બધા દરેક જગ્યાએ એનું સંકલન થશે, એમને સમાવવામાં આવશે. જિલ્લા કક્ષાનું પણ માળખું મોટું થશે અને ખાસ કરીને આપને ફરીથી કહી દઉં કે 17C નું જે માળખું છે એ તો હજુ એમને ઊભું છે. 17C જે છે એ ધર્મ સત્તાની હાઈએસ્ટ પોલિસી મેકિંગ બોડી છે, તો એ માળખું પણ બાકી છે. તો 17C થી માંડી રાજ્યથી માંડી વિભાગથી માંડી અને જિલ્લા સુધી ઘણા મહાન સંત મહાત્માઓ, સક્રિય સંત મહાત્માઓ છે એમને સામેલ કરવાના છે અને એમની તાકાતથી આ સંગઠન આગળ વધવાનું છે. અને તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે કે હજુ ઘણા સાધુ સંતો ખાલી જિલ્લામાં બે તંત્ર લીધા છે, હજુ 10 12 લેવાના બાકી છે. એ જ પરિસ્થિતિ વિભાગ અને રાજ્ય કક્ષાની છે. તો આ એક સ્પષ્ટતા આપને હું કરું છું. 17C પરિષદ આખું ઊભું છે, તો આ વાત પણ હું આપને કરું છું. હવે આગળની વાત, કારણ કે ધર્મ સત્તાને આગળ વધારવી હોય તો પછી તારીખો તો પહેલેથી નક્કી કરી દેવી પડે. ના કરીએ તો પાછી શિથિલતા આવી જાય. શિથિલતા આવે ના ચાલે. હવે આ સૌ સંત મહાત્માઓને વંદન કરીને, નતમસ્તક થઈને, ચરણ સ્પર્શ કરીને આપણે જે 17C પરિષદ જે છે એ 17C પરિષદ બની જાય અને જે અત્યારે માળખું જે બન્યું છે એ હોદ્દેદારો પૂરતી ફરીથી પાછી આપણે એક મીટિંગ રાખવી પડશે અને એ મીટિંગ બાબતે પણ અત્યારે સ્પષ્ટતા આપણે કરી દેવી જોઈએ. તો મારે આપ સંત મહાપુરુષોમાંથી થોડા ઘણા સંત મહાત્માઓ સાથે ચર્ચા થઈ છે. લલિત કિશોર બાપુ, બીજા આપણે બાકી બેઠા છે અહીંયા, ગોદાદાસજી બાપુ બધાને. તો મને એવું લાગે છે કે હવે 15મી ઓક્ટોબરના દિવસે વિજયાદશમી આવે છે. શું આવે છે? વિજયાદશમી, વિજયનો દિવસ. 15મી ઓક્ટોબરના દિવસે આજે 11 છે, સપ્ટેમ્બર 11 અને 15 ઓક્ટોબર એટલે મહિનો અને 3-4 દિવસ વધારે છે. તો આ 15મી ઓક્ટોબર વિજયાદશમીના દિવસે હું ખાલી આપને કહું છું, લઈને પછી આપ લેજો, હમણાં પ્રતિભાવ આપશો ત્યારે આપ કહેજો. તો એ દિવસે આપણે ફરીથી મળીશું અને આજે 17C પરિષદ છે ત્યાં સુધીનું માળખું આપણે પૂરું કરીશું અને માળખું પૂરું કરી અને આપણે એજન્ડા બનાવવો પડશે. કારણ કે હાલ તો મોટી મોટી વાતો થાય છે. આ ધરતીમાં તકલીફો શું છે, નાની મોટી તકલીફો શું છે, એ બધા સંતોને બહુ તકલીફો છે, હું જાણું છું. અને કયા પ્રકારની તકલીફો છે એની પણ જાણકારી છે. તો એનું બધું શોર્ટ લિસ્ટિંગ કરવામાં આવે કે સાધુ સંતો મંદિરોમાં, મઠમાં, આશ્રમોમાં આ પ્રકારની સમસ્યાઓ ફેસ કરે છે. સાધુ સંતોને ટ્રસ્ટીઓ તરફથી આ પ્રકારની સમસ્યાઓ આવે છે. સાધુ સંતોને સરકાર તરફથી આ સમસ્યાઓ આવે છે. સાધુ સંતોને એમની આજુબાજુના, મારે ન કહેવું જોઈએ, ચેરિટી કમિશનરો દ્વારા જે સમસ્યાઓ ઊભી કરવામાં આવે છે, આ બધું ઘણું છે, લિસ્ટ લાંબુ છે. એ આપણે બધું શોર્ટ લિસ્ટિંગ કરીશું. એક વખતે મુદ્દા નક્કી કરે કે આ પ્રમાણે થવું જોઈએ તો પછી અરજી લઈને ફરવાનું નહીં. અરજી લઈને ફરવાના દિવસો બંધ આજથી. હાથમાં અરજી લઈને તલાટી પાસે જવાનું, સરપંચ પાસે જવાનું, મામલતદાર પાસે જવાનું,
ટીડીઓ પાસે જવાનું, ડીડીઓ પાસે જવાનું, ફોજદાર પાસે જવાનું, જમાદાર પાસે જવાનું, કલેક્ટર પાસે જવાનું અને આ એમએલએ ની આગળ પાછળ ફરવાનું અને મિનિસ્ટરો આગળ હાથ જોડવાના, એ બધું બંધ. આ બધું બંધ. આ ધર્મ સત્તા છે, આ ધર્મ સત્તા છે. સત્તા સંકલ્પ કરશે કામ થવું જોઈએ. સત્તા સંકલ્પ કરશે કામ થવું જોઈએ અને જે થઈ શકે એવું જ નક્કી કરીશું. એવું નથી કે આ ન કરી શકે ને આપણે કહીએ કે કરો, એવું નથી કરવાનું. આપણને ખબર છે કે આ કામ સંભવ છે, થઈ શકે એમ છે, તો આ બધી વસ્તુઓ આપણે કરવાની છે. અને એના માટે આપણે વિજયાદશમીના દિવસે આપણે ફરીથી મળીશું અને એ પહેલા આપણે સંકલન કરીશું. અને હવે મારી વાત પૂરી કરું એ પહેલા હું ફરીથી કહી દઉં છું, આ કાર્યક્રમ જુનાગઢ થવાનો હતો, એના બદલે આ કાર્યક્રમ અહીંયા થયો. હવે જુનાગઢમાં કાર્યક્રમ જે લોકોએ બંધ કરાયો છે, રાજ સત્તામાં બેઠેલા જે લોકોએ જુનાગઢની અંદર કાર્યક્રમ થતો અટકાયો છે, એ લોકોને આ કાર્યક્રમ ગાંધીનગરમાં રાખીને એમની છાતી ઉપર બેસીને એમને હું બે ત્રણ વાત કહેવા માંગુ છું. આ રાજ સત્તાની છાતી ઉપર આપણે બેઠા છીએ. આ રાજ સત્તાની છાતી છે. આપણે તો જુનાગઢ બેસવાના હતા અને ત્યાંથી કદાચ વાત એ સાંભળે કે ન પણ સાંભળે, પણ એમને ફરજ પાડી કે ભાઈ ત્યાં જુનાગઢમાં તમે કઈ બોલ છો તો અમારા સુધી સંભળાશે નહીં, અમે બેરા છીએ, એટલે ગાંધીનગરમાં આવી અને અમારી છાતી ઉપર બેસીને એમને કંઈક વાત કરો. તો એમની છાતી ઉપર બેસીને હું કહું છું, એમની છાતી ઉપર બેસીને હું કહું છું, અહીંયા આઈબીના ઓફિસરો બેઠા છે, હું બોલું છું લખે છે, હું જે કંઈ બોલું છું એ આઈબીના ઓફિસરો બેઠે અહીં બેઠેલા છે અને બધું ત્યાં જવાનું છે. અને હું કહું છું કે અત્યાર સુધી સાધુ સંતોને તમે જે ફોન કર્યા છે એ માટે તો હું તમને માફી આપું છું. અત્યાર સુધીમાં આજ તારીખ સુધી તમે સાધુ સંતોને ફોન કરીને ડરાવવાની જે કોશિશ કરી છે, તો એના માટે તો ક્ષમા વિરસે ભૂષણ. તો આ ધર્મ સત્તા આજે બની ગઈ છે અને આ ધર્મ સત્તા તમને માફ કરે છે. શું આ ધર્મ સત્તા તમને માફ કરે છે? તમે જે પણ ફોન કર્યા, જે પણ સાધુને કર્યા, જે પણ સાધુઓને ડરાવવા માટે જે ફોન કર્યા, એના માટે તો ધર્મ સત્તા તમને માફ કરે છે. પણ આજની તારીખ પછી હું આ માધ્યમથી કહું છું, આપના માધ્યમથી આ રાજ સત્તાને કહું છું કે આજની તારીખ પછી જો કોઈ પણ સાધુ પાસે તમારો ફોન ગયો અને એ વાતની જો મને ખબર પડી ગઈ તો તમારી ખેર નથી. બસ આટલી વાત કહી અને મારી વાત હું પૂરી કરું છું. અહીંયા ઉપસ્થિત કનીરામ બાપુ, હું આપને ખૂબ ખૂબ બાપુ વંદન કરું છું. બાપુ હરિહરાનંદજી બાપુ, આપને ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. આપ સૌ પધારેલા અહીંયા સંતો છે, આપ સૌને હું નતમસ્તક છું. મેં આપને પહેલા બી જાહેરાત કરી અને હવે પણ કરું છું કે આપનો સેવક છું, આપનો સૈનિક છું અને આપનો રક્ષક છું. સાધુની રક્ષા માટે તો ભગવાને આવવું પડે છે. રક્ષા કરાવી એ સાધુનો મૌલિક અધિકાર છે. રક્ષા ભગવાને જન્મ લેવો પડે છે સાધુની રક્ષા માટે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે. તો સાધુ સંતોની રક્ષા એ મારી જવાબદારી છે. આ ફરીથી આપને હું કહી અને હું વિરમું છું. ફરીથી હર હર મહાદેવનો નારો આપણે પૂજન કરીશું.